Hello students, welcome to my channel Maths Ka Adda by Sakshi Chauhan. Today I am going to discuss some objective questions of chapter 3rd Matrix of class 12th, which is 1 mark questions. This video is beneficial for your school UTs and for board exams as well. Please must watch it till the end. So let's move. So question number 11 says that zero matrices this and this are equal state, true or false. So the definition of equality of matrices is what? Two matrices is said to be equal when the order of both the matrices are the same. So order देख लेते हैं इस matrix का क्या है? 1 2 2 rows, 1 2 3 columns, 1 2 2 rows, 1 2 2 columns. So order of this matrix is 2 cross 3 and order of this matrix is 2 cross 2. So the order is different. That's why statement is false. Okay. So move on to the next question. If this is equal to this, find the value of x and y. Okay. तो देखो this matrix is equal to this, so equality holds when the order of matrix are same. So इस matrix का order क्या है? 2 cross 2 and इस matrix का order भी क्या है? 2 cross 2. Okay, that means equality hold. इसका मतलब क्या हुआ कि corresponding elements are equal. That means this entry A11 is equals to this entry A11. So x plus 3y is equals to 4. Y is equals to -1, 7 minus x is equals to 0 and 4 is equals to 4. तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 7 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1. यहाँ पे एक बार इस वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कि सही है या नहीं. x की वैल्यू 7 है प्लस 3, y की वैल्यू -1. तो 7 minus 3 दैट इज़ 4 विच इज़ इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड. दैट मीन्स x की वैल्यू 7, y इज़ इक्वल्स टू -1. So next question is, if A is equals to this matrix, then for what value of alpha A is the identity matrix. So it is given to you, this A is the identity matrix. So this is equals to A 1 0 0 1. This is 2 cross 2 order matrix and this is also 2 cross 2 order identity. So you have to find the value of alpha here. Okay, two matrices is said to be equal when the corresponding elements are equal. So cos alpha is equals to 1 n minus sin alpha is equals to 0, sin alpha is equals to 0 and cos alpha is equals to 1. Okay, so cos alpha is equals to 1. अब ये cos alpha की वैल्यू 1 कब होती है? cos 0 डिग्री पे. That means alpha is equals to 0. And here sin alpha is equals to 0. Sin alpha is equals to 0 means sin की वैल्यू 0 किस एंगल पे होती है? sin 0 डिग्री पे. ओके, तो alpha is equals to 0 here. So alpha is equals to 0 degree. That is your answer. Now move on to the next. If given matrix A is equals to this 3 cross 3 order matrix is this, write the value of 3a22 minus 3a33. That means what is the value of a22 here? a22, that means second row second column, second row second column. This entry is a22, this is a33, that means third row third column, third row third column. This is a33. Okay, so substitute the value here. 3 into 5 minus 4 into 4. So 5 3s are 15 minus 16, which gives -1. This is your required answer. So move on to the next question. Question says that if A is equals to this matrix, then you have to find the value of a to the power 16. अब a to the power 16 निकालने के लिए सबसे पहले हमें a to the power 2 निकालना पड़ेगा, फिर 3 निकालना पड़ेगा, 4 निकालना पड़ेगा एंड सो ऑन. तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा काम हो जाएगा.
उसको करने से पहले क्या करेंगे हम, इन क्वेश्चन में एक टेक्निक क्या होती है कि मोस्टली a⁻2 करने पर, 3 करने पर, मैक्सिमम 4 करने पर हमें सारी एंट्रीज़ क्या मिल जाती है, 0। जब एक मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 0 एंट्रीज़ के साथ आ जाएगी, तो आगे की मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक बार निकाल के देख लेते हैं कि a⁻2 करने पे हमें क्या मिल रहा है। ओके, सो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई करो, व्हाट वी गेट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 0 के साथ दोनों 0 है, तो दोनों के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस अगेन 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0। तो देखो a⁻2 करने पर ही हमें 0 मिल गया, 0 एंट्रीज आ गई सारी। तो a⁻2 की होल पावर अगर मैं 8 कर दूँ, बिकॉज 8 2 ज़ा 16, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। और आइडेंटिटी ये क्या है, 0 मैट्रिक्स, नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है, 0 मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स की मैं अगेन 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मैट्रिक्स। सो a⁻16 क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स। सो दिस इज़ योर required answer. So next question is, if this matrix multiplied by this matrix is equals to this, then write the value of k here. तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिकॉज दिस इज 2x2 ऑर्डर एंड दिस इज ऑल्सो 2x2 ऑर्डर। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम एंट्री एंड सेकेंड मैट्रिक्स की रो एंट्री शुड बी सेम, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पे जो एंट्री आएगी वो भी किस ऑर्डर की आएगी, 2x2 ऑर्डर की आएगी, और ये भी 2x2 ऑर्डर की, दैट मीन्स इक्वालिटी भी होल्ड करती है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 1 × 3 3 प्लस 2 × 2 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 प्लस 5 2 ज़ा 10, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 ज़ा 9 4 2 ज़ा 8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 5 ज़ा 20 इक्वल्स टू 7 11 k 23। you get 7 17 11 23 is equals to 7 11 k and 23. okay, अब इक्वालिटी होल्ड्स बिकॉज दिस इज 2x2 ऑर्डर एंड दिस इज 2x2 ऑर्डर, सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देखो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री और इसमें भी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री सेम है, यहाँ पे 11 भी सेम है, 23 भी सेम है, दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू 17. That is your required answer. So next question is, if matrix this skew symmetric, then find the value of a and b. और ये क्वेश्चन CBSE 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a ट्रांसपोज। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये क्या होता है, रूल होता है या फिर प्रॉपर्टी होती है, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a ट्रांसपोज। ओके, a ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम, इसको t से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो 1 कन्वर्टेड इनटू द कॉलम 1 0 a -3, दिस रो 2 कन्वर्टेड इनटू द कॉलम 2, दिस रो 3 इज कन्वर्टेड इनटू द कॉलम 3। ओके, अब क्या चाहिए हमें, माइनस ऑफ a ट्रांसपोज चाहिए, तो माइनस साइन लगा देते हैं, तो अंदर एंट्रीज भी क्या हो जाएगी, माइनस साइन के साथ हो जाएगी, ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a ट्रांसपोज होता है, दिस a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a ट्रांसपोज, तो कंपैरिजन करो एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ a। देखो फर्स्ट एंट्री क्या है 0, तो ये 0 के इक्वल आ रही है, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, b इज इक्वल्स माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू 3। तो a is equals to -2 and b is equals to 3. That is your required answer. So move on to the next question. If matrix A is this and fx is equals to I plus x square plus x to the power 4 plus x to the power 8 plus x to the power 16 and you have to find f of a. So हम यहाँ पे replace कर सकते हैं x को a से, तो in place of x we write it as a here.
okay. So we have to find the value of a square, a square, a to the power 4, a to the power 8, a to the power 16, okay. अभी 15 क्वेश्चन में सेम हमने एक ऐसे ही क्वेश्चन किया था, लेकिन वहाँ पे मैट्रिक्स क्या थी, 0 a 0 0, और वहाँ पे हमें फाइंड आउट करना था a टू द पावर 16, ओके. तो इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या टेक्निक होती है कि a स्क्वायर या a टू द पावर 4 मैक्सिमम यहाँ तक करने पर हमें एक मैट्रिक्स मिल जाती है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 0, ठीक है. तो आगे की जितनी भी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या आ जाएगी, सारी ज़ीरो हो जाएंगी. तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है और a भी हमें यहाँ पे गिवन है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं a स्क्वायर. a स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, a इंटू ए, 0 2 0 0 की मल्टीप्लाई हम सेम 0 2 0 0 से कर देते हैं. वी गेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0, दिस अगेन 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, ओके. अब ए स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, एक मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 0, ठीक है. तो और ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ए स्क्वायर क्या है, 0 मैट्रिक्स. अब 0 मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे आप तो आपको मिलेगा a टू द पावर 4, दैट अगेन 0 मैट्रिक्स, ओके. 8 की पावर 4 का होल स्क्वायर करोगे आप, यू गेट a टू द पावर 8, यू अगेन गेट 0 मैट्रिक्स. a टू द पावर 8 का स्क्वायर करोगे, you get a to the power 16, this again 0 matrix. So substitute the value here and we get f of a is equals to identity matrix, that is 1 0 0 1 plus a, that is 0 2 0 0. a स्क्वायर भी देखो क्या आ गया, 0, a टू द पावर 4 भी 0, a टू द पावर 8 भी 0, a टू द पावर 16 भी 0. सो सिंपली बस इसको ऐड कर दो, you get 1 plus 0 1, 0 plus 2 2, 0 1 plus 0 1. This is your required answer. So next question says that if A and B are the matrices of order, A matrix order है 3 cross M and B matrix का order है 3 cross N respectively, such that M is equals to N, then order of 2A plus 7B is what. अब देखो A का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस M, और B का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस N, ओके. अब जब मैं इस मैट्रिक्स की जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस M है मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, उसका अगेन ऑर्डर 3 क्रॉस M ही होगा, ठीक है. सेम यहाँ पर भी अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई करूँगी B मैट्रिक्स से, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस N ही होगा. और दोनों मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा, ओके. तो 2A प्लस 7B अगर मैं ऐड करूँगी तो इसका ऑर्डर क्या आ सकता है, या तो 3 क्रॉस M आ सकता है या फिर 3 क्रॉस N आ सकता है, ठीक है. 3 क्रॉस M भी आ रहा है तब भी आंसर करेक्ट है, 3 क्रॉस N आ रहा है तब भी आंसर करेक्ट है, बिकॉज ये हमें गिवन भी है m इज़ इक्वल्स टू n. तो m की वैल्यू जो होगी वही n की वैल्यू होगी. तो ऑर्डर ऑफ दिस इज़ ईदर m क्रॉस 3 और n क्रॉस 3. So last question says that matrix multiplication is commutative, state true or false. तो in general matrix multiplication is not commutative, that means AB is not equals to BA. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है. अगर एक मैट्रिक्स में ले लेती हूँ जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और बी मैट्रिक्स ले लेती हूँ जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है ना जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम एंट्री और सेकेंड मैट्रिक्स की रो एंट्री सेम होनी चाहिए, ठीक है. एक रिजल्ट और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. ए बी मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n ऑर्डर की है और बी मैट्रिक्स n क्रॉस p ऑर्डर की है, ये तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो कॉलम एंट्री और सेकंड मैट्रिक्स की रो एंट्री सेम होगी. अब मैट्रिक्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे वो किस ऑर्डर की आएगी, m क्रॉस p ऑर्डर की आएगी, ओके. सो
इसी रिजल्ट से हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे वो किस ऑर्डर की आएगी, 2x2 ऑर्डर की आएगी। ओके, अब हम बात करते हैं बी ए मैट्रिक्स की। बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 3x2 ऑर्डर की है, और ए मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर की है। तो जो मैट्रिक्स आएगी बी ए वो किस ऑर्डर की होगी, दिस 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स की होगी। अब देखो ए बी जो मैट्रिक्स आ रही है वो तो 2x2 ऑर्डर की आ रही है, और जो बी ए मैट्रिक्स आ रही है वो 3x3 ऑर्डर की आ रही है। तो ये तो इक्वल कभी हो ही नहीं सकते, बिकॉज दिस इज़ 2x2 ऑर्डर एंड दिस इज़ 3x3 ऑर्डर। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव डज नॉट होल्ड इन द multiplication. So if you guys enjoyed this session, then press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Keep supporting, keep motivating.